Dear students, Assalamu alaikum. So today we are going to discuss hydrodynamics. Hydrodynamics. As you know, hydrostatics is a branch of physics which deals with the fluids at rest. But hydrodynamics means the branch of the physics which deals with the fluids in motion. Fluids in motion, right? So the motion of the fluids is of three types. Sorry, in general, no problem. So it is of three types. First point, flowing liquid. Flowing liquid is considered or treated as incompressible. That is, density of the liquid remains same. Density of liquid remains same. ठीक है, तो जो फ्लोइंग लिक्विड होता है इसको ट्रीट किया जाता है दैट इज इनकम्प्रेसिबल. नंबर वन. नंबर सेकेंड, नॉन विस्कस. So non-viscous liquid means non-viscous when there is no friction between the different layers of the liquid. Different layers of the liquid. So then the liquid is known as non-viscous liquid. When the liquid flows in the form of layers and there is no friction between the different layers of the liquid, internal friction जिसको हम viscosity भी कहते हैं, अगर इनके दरमियान viscosity या internal friction नहीं होगा तब हम इस liquid को कहते हैं non-viscous liquid. And if the density of the liquid remains same throughout the liquid flow, then it is known as incompressible liquid. ठीक है, तो हम liquid flow की बात करेंगे. मैंने आपसे कह दिया है कि this is of three types. तीन तरह का है. नंबर वन, that is known as steady flow or streamline flow. Streamline flow of the liquid को हम कहते हैं this is smooth flow of the liquid, also known as smooth flow of the liquid. This is also known as steady flow of the liquid. Steady flow of the liquid. ठीक है, so one type of liquid flow is known as streamline flow, or it is known as smooth flow of the liquid, or it is known as steady flow of the liquid, or it is known as regular flow of the liquid. ठीक है, तो सेकेंड टाइप इसका बन जाता है, सेकेंड टाइप दैट इज नोन एज laminar flow of the liquid. Laminar flow of the liquid क्या होता है? That is liquid flow in layers. ठीक है, in layers. So when liquid flows in the form of layers and velocity of the layer
which is in contact with the surface which is in contact with the surface of the container or surface of the tube of flow, having velocity lowest and highest velocity of the topmost layer. So this type, सबसे कम वेलोसिटी बॉटम लेयर की होती है, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी टॉप लेयर की होती है, तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज लेमिनर फ्लो। ठीक है। तो इसके बाद एक तीसरा फ्लो भी होता है जिसको हम कहते हैं इरेगुलर फ्लो ऑफ द लिक्विड। ठीक, इस इरेगुलर फ्लो ऑफ द लिक्विड को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द लिक्विड। ठीक है। तो इस तरह से इनकम्प्रेसिबल होता है जिसकी डेंसिटी सेम होगी, नॉन विस्कस वो होता है जिसकी मतलब इंटरनल फ्रिक्शन जब लेयर्स में नहीं होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो हम कहते हैं उस लिक्विड फ्लो को, जब ये हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो स्मूथ फ्लो भी कहते हैं, स्टेडी फ्लो भी कहते हैं, या रेगुलर फ्लो भी कहते हैं। इरेगुलर फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। जब लिक्विड फ्लो हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द लेयर्स, द लोवेस्ट वेलोसिटी ऑफ द बॉटम लेयर एंड हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ द टॉप लेयर, तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज लेमिनर फ्लो। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो की। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड हम इस तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड। तो अब एक ट्यूब को ले लीजिए जिसमें से लिक्विड फ्लो हो जाता है। सो दिस इज द एंड वेयर फ्रॉम द लिक्विड इंटर्स into the tube, and this is the end where from the liquid leaves it। ठीक है। तो इस ट्यूब या इस पाइप में से जब लिक्विड फ्लो हो जाएगा तो हम 3 पॉइंटर्स यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, 1, 2 और 3। यहाँ पे देख लेंगे द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द लिक्विड, दिस इज नोन एज वेलोसिटी v1। और जब यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंट डाल देंगे तो ये वेलोसिटी v2 बन जाती है, यहाँ पे डाल देंगे तो ये वेलोसिटी v3 बन जाती है। ठीक है। सो हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। तो हमने एक ट्यूब को लिया जिसमें से लिक्विड फ्लो हो जाता है, ए से इंटर हो जाता है और बी से एग्जिट हो जाता है। ठीक है। तो एक लिक्विड ये एक पाथ फॉलो कर लेता है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं, और इस कब हम इसको कहेंगे, दिस इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। चलिए, तो हम एक पॉइंट ए हमने लिया, दूसरा पॉइंट बी हमने लिया, तीसरा पॉइंट हमने सी लिया। ठीक है। ए पे वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल दैट इज v1, और बी पे वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल v2, सी पे वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल v3। ठीक है। दैट मीन्स डिफरेंट वेलोसिटीज। तो हम इसको लेमिनर फ्लो या हम इसको लेमिनर फ्लो नहीं, स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्मूथ फ्लो या स्टेडी फ्लो या रेगुलर फ्लो तब कहेंगे जब सभी लिक्विड पार्टिकल्स जो होंगे दैट पास थ्रू द एयर, सभी लिक्विड पार्टिकल्स, जितना भी लिक्विड फ्लो हो जाता है और जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मूव हो जाते हैं थ्रू ए, अगर सब की वेलोसिटी v1 होगी, या जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स बी से पास हो जाते हैं और सब की वेलोसिटी v2 के बराबर होगी, इसी तरह से जो लिक्विड पार्टिकल्स मूव हो जाते हैं थ्रू द सी, सब की वेलोसिटी v3 होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि ए, बी और सी की वेलोसिटी सेम होगी, बट ए पे एक वेलोसिटी होगी, बी पे दूसरी वेलोसिटी होगी और सी पे तीसरी वेलोसिटी होगी। ए पे जो वेलोसिटी होगी सब लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अगर v1 हो, बी पे जो वेलोसिटी है दैट इज़ v2, अगर सभी लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी v2 होगी। इसी तरह से v3, यानी हम कहेंगे कि हर मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स कांस्टेंट हो तब हम इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज लेमिनर फ्लो, दिस इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। दैट इज velocity of every particle, if velocity of every particle, ठीक है, of liquid remains same at every point, हम नहीं कहेंगे
अगर एवरी पॉइंट होता तो ए पे, बी पे और सी पे वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, या बी ए पे या बी पे या सी पे, एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर सभी लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे हम देख लेंगे, अगर वो कांस्टेंट है, तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड। और जो ये लिक्विड पाथ फॉलो हो जाती है, दैट इज पाथ ऑफ द लिक्विड, पाथ ऑफ द लिक्विड, और पाथ फॉलोड बाय द लिक्विड, इसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन। दिस इज नोन एज स्ट्रीम लाइन। मेरे ख्याल में आप ये बात समझ गए होंगे कि जब लिक्विड किसी भी ट्यूब में से फ्लो हो जाता है, और अगर सभी लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, एट एनी पॉइंट, नॉट एट एवरी पॉइंट, बट एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो path of liquid, path followed by the liquid, that is known as streamline। ठीक है, तो वेलोसिटी ए पे, बी पे और सी पे सेम नहीं होगी, लेकिन सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी एट ए, या सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी एट बी, या सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी एट सी अगर सेम रहती है, तब हम इस तरह के फ्लो को कहते हैं, दिस इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, इरेगुलर फ्लो या लेमिनर फ्लो हम इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो के। कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। नंबर 1, the tangent to the streamline at any point gives the direction of the velocity of liquid particle. Tangent at any point to the streamline gives the direction of velocity of a liquid flow। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है, नो टू streamlines intersect each other because at the point of intersection at the point of intersection, the direction of flow, there are two directions of flow, which is not possible। ठीक है, तो एक स्ट्रीम लाइन ये होगी, एक स्ट्रीम लाइन ये होगी। यहाँ पे टेंजेंट डाल देंगे तो ये वेलोसिटी बन जाती है, ये टेंजेंट डाल देंगे तो ये वेलोसिटी बन जाती है। v और v दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे नहीं हो सकती हैं, सो वी कैन से नो टू स्ट्रीम लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सो दीज आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, लेट अस कंसिडर ए ट्यूब having varying area of cross section, having varying area of cross section, यानी यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। सो ए और बी हम लेंगे एंड्स, and this is the end wire from the liquid enters into the tube, and this is the end wire from it exits। यहाँ की वेलोसिटी हम v1 रख लेते हैं।
ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी हम v2 रख लेते हैं. So v2 is the velocity of the liquid that leaves the tube. v1 is the velocity with which the liquid enters the tube. यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 लिखेंगे, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट इट बी a2. ठीक है, so let rho1 is the density of the liquid at end A and rho2 is the density of the liquid at end B. So for this we have considered a tube of varying area of cross section. यहाँ का area of cross section ज़्यादा है as compared to the end B, through which a liquid flows from A to B. Velocity with which it enters v1 है, velocity with which it leaves v2 के बराबर है. रो वन यहाँ पे डेंसिटी हमने रखी है, रो वन यहाँ पे डेंसिटी हमने रखी है. सो दीज आर द अदर स्ट्रीमलाइनर्स दैट फ्लो. सो यहाँ पे हम वेलोसिटी लिखेंगे v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2. ठीक है, नाउ सी व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो यहाँ की बात हम करेंगे. लेट distance traveled by the liquid, distance traveled by the liquid in delta t is equal to. So delta t में जब लिक्विड इंटर हो जाएगा तो डेल्टा टी में कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा. सो मान लीजिए यहाँ तक, तो इस टाइम में ये लिक्विड पहुँच जाता है. जब हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं. जाहिर सी बात है, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है v1, टाइम यहाँ तक कितना लगा दैट इज डेल्टा टी. ठीक है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम तो डिस्टेंस बन जाती है. सो दैट इज इक्वल टू v1 डेल्टा टी. तो ये डिस्टेंस आपकी v1 डेल्टा टी के बराबर होगी. ठीक है, तो जब हम इसकी शेप देख लेंगे, ट्यूब जाहिर सी बात है सिलेंड्रिकल होगा, तो ये एक छोटा सा सिलेंडर यहाँ पे बन जाता है जिसकी लेंथ, जिसकी हाइट v1 डेल्टा टी के बराबर है. सो v1 इज द वेलोसिटी एंड डेल्टा टी इज द टाइम. सो इन टाइम डेल्टा टी हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय द लिक्विड, दैट इज v1 डेल्टा टी. नाउ यहाँ पे डेंसिटी किसके बराबर है, रो वन के बराबर. तो हम यहाँ पे मास ऑफ लिक्विड that enters in time delta t is equal to delta m. लेकिन मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. सो इट इज रो वन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. सो रो वन मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से यहाँ तक जो लिक्विड की शेप बन जाती है दैट इज अ सिलेंडर. तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना होगा. अगर ये देख लेंगे तो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर बन जाती है और यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज इक्वल टू a1. सो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h. पाई आर स्क्वायर आपका a के बराबर है, a1 के बराबर है, और h हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स v1 डेल्टा t. तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम के बदले में a1 v1 डेल्टा t. ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज डेल्टा टी को डिवाइड कीजिए डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा t, दैट इज इक्वल टू रो वन a1 एंड v1. दिस इज मास ऑफ द लिक्विड दैट पर यूनिट टाइम. तो हम इसको कहते हैं मास फ्लक्स. ठीक, सो मास फ्लक्स आपका है रो वन a1 और v1. ठीक, that means this is mass of the liquid that enters into the pipe in time delta t. ठीक है, तो similarly mass flux at
B is, so that is delta m divided by delta t is equal to, वहाँ पे रो टू होगा, A2 होगा और V2 होगा, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी रो टू है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और वेलोसिटी किसके बराबर है, V2 के बराबर। ठीक है। नाउ एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होगा, देयर इज नो सिंक और सोर्स, देयर इज नो सिंक और सोर्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब ए से बी तक हम देखेंगे, कहीं पे लिक्विड जमा नहीं हो जाता है, ठीक, या कहीं पे लीक नहीं हो जाता है इसका। ठीक है। दूसरी बात कि कहीं और से लिक्विड इसमें इंटर नहीं हो जाता है। दैट मीन्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नो लिक्विड इज लीविंग और एंटरिंग, नो लिक्विड इज एंटरिंग और लीविंग अदर देन ए एंड बी। ठीक, कहीं बीच में ना लिक्विड लीक हो जाता है, कहीं बीच में ना लिक्विड इसमें इंटर हो जाता है, उसी को हम कहते हैं देयर इज नो सिंक और सोर्स। ठीक है। तो अगर सिंक और सोर्स कहीं पे भी नहीं है, जितना लिक्विड यहाँ पे इंटर होता है इतना ही लिक्विड यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। तो इस तरह हम कहेंगे मास फ्लक्स एट ए इज इक्वल टू मास फ्लक्स एट बी, mass flux at A is equal to mass flux at B। ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक इक्वेशन बन जाती है, रो वन A1 V1 is equal to रो टू A2 V2। ठीक है। लेकिन हम पहले ही बात कर रहे थे कि जो फ्लोइंग लिक्विड होता है दैट इज इनकम्प्रेसिबल। सो इफ the liquid is incompressible, ठीक है, तब रो वन आपका रो टू के बराबर होगा विच इज इक्वल टू रो। तो इस तरह से रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 और V2, रो कैंसल हो जाएगा, सो वी विल गेट हियर A1 V1 इज इक्वल टू A2 और V2, और वी कैन राइट हियर AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। इस तरह आप बॉयल्स लॉ लिखते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है, जिस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए, और वी कैन राइट हियर v is inversely proportional to a. So larger the area of cross section, smaller will be the velocity. Larger the area of cross section, smaller will be the velocity, smaller will be the velocity। ठीक है, बात समझ गए आप। एंड वाइस वर्सा, तो जब आप घर में पानी का यूज़ कर देते हो, तो मान लीजिए आप एक रबर पाइप लेंगे, तो आप पानी छिड़क रहे हैं अपने घर के छत पे, तो आप थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेते हैं तो पानी बहुत आगे चला जाता है। सो दैट इज़ वाई जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आप जहाँ पे ओपनिंग नैरो होगी वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे ओपनिंग नैरो नहीं होगी, लार्ज होगी, वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। तो इसी तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। तो इसी तरह से हम वॉल्यूम फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम फ्लक्स means volume of the liquid that enters, volume of the liquid that leaves। ठीक है। तो मास के बदले में अगर हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड,
वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड किसके बराबर होगा? सिंपल सी बात है। So volume of the liquid that enters, that is del V is equal to, वॉल्यूम होता है आपका डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सो इट इज सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर के बदले में हम लिखेंगे A1, एच के बदले में हम लिखेंगे यहाँ पे V1 डेल्टा टी, V1 डेल्टा टी। ठीक है, ये द एट ए होगा, एट ए। एट बी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज डेल वी इज इक्वल टू A2 V2 डेल टी। तो यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू A1 V1। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सो डेल वी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू इट इज A2 V2। ठीक है, सो अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होगा तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगी, सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 और AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम फिर से कहेंगे, दिस इज आल्सो नोन एज वॉल्यूम फ्लक्स रेट। वॉल्यूम फ्लक्स यानी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट एंटर्स और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट, सो वी कैन राइट dV डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू AB। तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लक्स। ठीक है, तो मास फ्लक्स हम फिर से लिख सकते हैं, मास फ्लक्स, मास फ्लक्स आपका होगा, मास होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी दैट इज रो इनटू dV डिवाइडेड बाय dt। ये वॉल्यूम है, और ये वाला v जो है दिस इज वेलोसिटी। सो दिस इज अगेन एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम फ्लक्स। तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस के ये हैं कि मान लीजिए अगर डीप फ्लो ऑफ द लिक्विड हम देख लेंगे, डीप फ्लो ऑफ लिक्विड यानी जहाँ पे पानी गहरा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी स्मॉल। ठीक, तो दैट अपीयर्स टू फ्लो स्लोली। जो दरिया में भी अगर पानी होगा जो फ्लो हो जाता है, अगर वो डीप होगा तो डीप में आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो इज स्मॉल। ठीक है, तो ये थी हमारी इक्वेशन विच इज नोन एज equation of continuity, and inshallah in the next lecture we will discuss turbulent flow, और उसी में से हम फिर डिस्कस कर लेंगे बर्नौलीज थ्योरम भी। ठीक है, ओके, थैंक यू।